Okay. In this lecture, we study how we can find the equation of streamlines. As we all know, if we define a position vector dr is equal to dxi plus dyj plus dzk. This is our differential of position vector r. For equation of streamlines, suppose dr is directly proportional to v. V is the velocity vector and dr is the differential of the position vector. So this differential is directly proportional to the velocity v. Or we can write it dr is equal to lambda times v. By eliminating the constant of proportionality, we write lambda. Lambda is the constant of proportionality. So by replacing the value of dr is dxi, dyj, dzk. We can also write it in this form dx, comma, dy, comma, dz. Dr is a vector. We can write it in the component form or in ijk form. Both forms are okay. So we replace the value of dr, dx, dy and dz on right hand side. As we all know, the velocity vector is defined in the component form as u, v, w. These are the components of velocity. By replacing the values of velocity and dr, we get this equation. Now by equating the left and right hand side, first term on the left hand side, first term on the right hand side, we get dx is equal to lambda times u. Now equating second term, dy is equal to lambda v. This is the jth component, first component is the ith component, and the last component dz is the kth component. So by equating dz is equal to lambda w. From these equations, we find the values of lambda. From first equation, lambda is dx by du. From second equation, lambda is dy over v. And from third equation, lambda is dz over w. So if all these terms are equal to lambda, we can take their left sides are same. So we write it in the form dx over u is dy over v is equal to dz over w is equal to lambda. This is the equation of streamline. Whenever we have to find the equation of streamline, we use this equation. Okay, these differential divided by the velocity vectors, dy is the differential of y, divided by v, dz is the differential of z, divided by w. These are all equal to lambda. So by writing it in this form, we can find the values of streamline. So we also say that some books, equation of streamline is also called the equation of fluid. Streamline equation describe the motion of fluid as geometry. तो जब भी आपको geometry का पता करना है तो streamlines easily show you the geometry of the fluid. Find stream equation for this vector. अब इसको हम ये टॉपिक था, अब इसके साथ का क्वेश्चन हम देख रहे हैं. We have velocity vector. Question number 1. Velocity vectors are with two components u and v. U component is minus 2y and v's component is equal to x. As you all know, v is equal to u, v, w. Here in this question, v is given as minus 2yi plus xj, or we can write ui plus vj plus wk. This is the general form. This is specifically given in this question. By equating the general equation and the equation given in this question, u is equal to minus 2y and v is equal to x. Now we have u and v. So there is no w component. So our equation of streamline, as we derive earlier, it takes the form dx by u is equal to dy over v. By replacing the values of u and v, we get this form. This is a differential equation in variable x and y. To eliminate the differential d on both sides, we take integral on both sides. Or first making the separation of variable, x variable is separated with dx, y variable is separated with dy, and integrate both sides. We first write x dx is minus 2y dy. Now integrate both the sides and we get this form. X square by 2 is the integral of x, y square by 2 is the integral of y, 2 is cancel out, plus c is the constant of integration. By c is in the form of this. Now by writing it, this is another form of the equation. Divide c on both sides, and this is the general form of the equation of the ellipse.
मतलब जो हमारा जो फ्लूइड है उसकी मोशन क्या है, वो इलिप्टिक मोशन में आ रहा है। जो हमारे पास स्ट्रीम लाइंस बन रही हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं ज्योमेट्री ऑफ द फ्लूइड को डिस्क्राइब करती हैं। तो अभी हमने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यू कैन ईजिली सी दैट कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आया है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास a इज √2c, b इज √c, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो जो भी हमारा फ्लूइड अभी मूव कर रहा था, जो उसकी स्ट्रीम लाइंस हैं, वो उनकी मोशन या जो फ्लूइड की मोशन है वो क्या है, हमारे पास जो पाथ है वो क्या है, इलिप्टिक आ रहा है इस केस में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। u इज़ गिवन एज a, v इज़ गिवन एज bx। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने इंटीग्रेट किया है बोथ साइड्स को, और जब उससे सॉल्व किया तो हमारे पास इस केस में आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर बी वाई प्लस सी। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, पैराबोलिक पाथ आ रहा है। सो सिमिलरली अगला एक दो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के पाथ्स आ रहे हैं। नो नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रीम फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने 3 टॉपिक स्टडी किए थे लास्ट क्लास में, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइंस एंड स्ट्रीम फंक्शंस। स्ट्रीम फंक्शन इज अ फंक्शन साई हैज़ कंपोनेंट x एंड y, अगर z भी होगा तो साई इज इक्वल टू साई एक्स वाई डिफाइंड बाय u, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमेशा पार्शियल साई बाय पार्शियल y के इक्वल लेना है, एंड v वेलोसिटी कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल x। दिस इज कॉल्ड the stream function. This is the definition of the stream function. Whenever we have incompressible flow, as we derived in the last class, equation of flow for incompressible fluid is del dot v is always equal to 0. This is the continuity equation. By replacing the component, del is defined as partial by partial x, partial by partial y. V has 2 components, u and v. By taking the dot product del dot v, we get this form partial u by partial x plus partial y by v by partial y is equal to 0, which is the equation of continuity. By replacing the values of u and v from stream function, u is given as partial psi by partial y and v is given as minus partial psi by partial x. Now by replacing the values here in this continuity equation, we get this form and we get this equation. This is called this form is called psi xy is equal to psi yx. As you all know the definition of continuous function, if f of yx is equal to f of xy, this function is called continuous function. तो अभी जो हमें स्ट्रीम फंक्शन दिया था उसको भी हमने जब रिप्लेस किया है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में, और ये किसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी थी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। जब हमने इसमें रिप्लेस किया है तो हमारे पास क्या आ गया है कि ये प्रूफ हो गई है चीज़ कि साई एक्स वाई इज इक्वल टू साई वाई एक्स। सो साइज इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वो फुलफिल करता है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन को। अच्छा, और एक और चीज़ कि हमारे पास जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन थी उसकी ये फॉर्म थी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन कैसे फाइंड की थी, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होते हैं तो रो को हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अगर रो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 कंसिडर करेंगे। सो इस कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में जब ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, हम वी आर लेफ्ट विद ओनली सेकेंड टर्म डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0, और वहाँ से रो इज़ अ कांस्टेंट, इसको हम इस ऑपरेटर से बाहर शिफ्ट कर दें तो रो डेल डॉट वी इज़ 0। एज यू ऑल नो रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ प्रोडक्ट इज 0 इट मीन्स डेल डॉट वी इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है कि जब भी हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा तो जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है उसकी फॉर्म आ जाएगी डेल डॉट वी इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, और ये आप कुछ एडवांटेजेस हैं कि स्ट्रीम फंक्शन क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रीम फंक्शन इज़ यूजफुल इन कन्वर्टिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर उसमें हम स्ट्रीम फंक्शन अप्लाई करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर स्ट्रीम फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो कब कॉन्टीन्यूस होगा, ऐसे जैसे अभी हमने प्रूफ किया है कि जब भी हमने कंसिडर किया इनकम्प्रेसिबल फ्लो और स्ट्रीम फंक्शन बिकम्स कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो था तो हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूसिटी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इम्प्लाइज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, और
ये हमारे पास वाइस वर्सा ट्रू है, और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसका मतलब है कि उसमें हमारे पास स्टीम फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस। उसके अलावा एक और चीज़ है स्टेगनेशन पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए ड्यूरिंग फ्लूइड मोशन, जहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। तो अगर हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ये जैसे ये क्वेश्चन है, हमने इसको शो करना है कि हमने फाइंड करना है इसका स्टेगनेशन पॉइंट, तो हमने इस वेलोसिटी को ले लेना है इक्वल टू ज़ीरो। हमने इसके तीनों कंपोनेंट्स को जब ज़ीरो ले लिया है, आई और जे कंपोनेंट्स को, तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनी है y इज़ इक्वल टू -x एंड x4 इज़ इक्वल टू 16 या x इज़ इक्वल टू 2 आयोटा। तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया है x4 16, वहाँ से x की वैल्यू आ गई है +-2, और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने से वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +-2 आयोटा। अब ये +-2 आयोटा में यहाँ इमेजनरी पार्ट आ गया है, तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि फ्लूइड के लिए हम कॉम्प्लेक्स पाथ फ्लूइड मोशन में कैलकुलेट करें, तो हम जस्ट रियल पार्ट कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू +-2। x की ये वैल्यू हम y में रिप्लेस कर देंगे, तो y क्योंकि -x है, लास्ट पेज पे हमने देखा है, सो y इज़ इक्वल टू -x। जब इसमें रिप्लेस किया तो y की हमारी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये दो पॉइंट्स होंगे फ्लूइड मोशन में जहाँ पे उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जिस भी पाथ पे फॉर एग्जांपल फ्लूइड मोशन कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट है 2 -2, ये कंपोनेंट है, और ये है -2 और 2, तो ये वो दो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। जब भी आप उसका पाथ ड्रॉ करेंगे, जो स्ट्रीम लाइन से आपने पाथ कैलकुलेट किया है, तो वहाँ से वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू कि जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जब भी हमें स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेट करना है, हमें इसको पहले चेक करना होता है कि ये कॉन्टीन्यूज़ है, और फिर हमने इसको फर्दर कैलकुलेशन करनी है स्ट्रीम फंक्शन की। ये हमें गिवन है वेलोसिटी वेक्टर। इसको चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी आपके पास ये स्टेगनेशन पॉइंट तक यहाँ इस वीडियो में आपने कैलकुलेट कर लिया।